गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो लगता है कम ही लोग हैं। हो जाएंगे 2-3 मिनट में, सारे आ जाएंगे। हेलो। हेलो। यस कुलदीप जी। 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 नो पीपल आर ज्वाइनिंग। ओके, विल टेक 1-2 मिनट। यस। सो our today's topic is hardener. Is it visual? यस इट इज। So the third major additive in powder coating after flow benzoin is the matting. We call this matting and curing agent because this has dual tendency for curing as well as matting. This is generally all the product like B68. The B68 was the first product which is introduced by Degussa. Then later on, when Chinese market opened, there are so many products like MB68, TC68, TP68, all the product with number 68 is almost the same. Only the Reda product, that is 6031B. This is from South Sea, not Reda. Now Reda is only doing marketing, but this product is from South Sea, China. So earlier this product was 6031A. If anybody is having any memory, so 6031A was, this product was totally non-yellowing hardener, and due to cost, they introduced 6031B. This is very slightly yellowish tendency, but better than all these products. These all are slightly yellowish, but this is better than all product. But of obvious, the cost is also high. Suppose this is 400 rupees. These all product maybe 380 to 400, and this 631B, this is 450. The cost is again, but the flow, the good property is flow is better. Flow is better than all other hardener, and matting also. You can get up to 0 to 1% gloss level with 6031B, and with all these you can get the gloss level up to 2 to 5%.
With some formulation, you can get less than 2, but this is for dead mat, 6031B is the best product. So the curing agent, also called hardener, in epoxy resin is a chemical compound that react with the epoxy resin, typically diglycidyl ether of bisphenol A or similar epoxide, to initiate the curing process, which transform the liquid resin into solid. During curing, when epoxy resin gets in the form of liquid, so then this hardener reacts with that liquid resin and make it thermoset polymer. So the epoxy resin is a product of bisphenol A plus epichlorohydrin. With this reaction and epoxy equivalent weight, this should be 700 to 800. This is the good product. So what happens step by step during curing? Maybe in today we cannot complete this, so in the next class I will continue, because this is a good chemistry. What happens step by step? So mixing stage, the epoxy resin is mixed with the curing agent. The most widely used epoxy resin is bisphenol A, which has 2-terminal epoxide group like this. Each epoxide ring is a strand 3-membered cyclic ether, highly electrophilic and prone to nucleophilic attack. The chemical reaction, the curing agent contains active hydrogen atom or other reactive group like amine, anhydride, or acid that open the epoxide ring. So this reacts with the epoxy resin. Epoxy resin undergo step growth polymerization through a chemical reaction between epoxide group and active hydrogen containing curing agent. The curing process is irreversible and result in a rigid 3-dimensional polymer matrix with high mechanical strength, chemical resistance, and thermal stability. This is because the chemical resistance, of epoxy is the best. And when epoxy reacts with polyester, there are 2 types of reaction: condensation reaction and secondly addition reaction. So sometime in glossy finishes, when epoxy reacts with polyester, if condensation reaction is there with 70-30 or 50-50, so if you find a micro pinhole, you can add more epoxy, excess. Add excess epoxy, maybe 100-200 gram. So this comes to the addition reaction. So in addition reaction, less water of reaction is evolved, and in condensation more water of reaction is evolved. This. So now we are coming to matting. The final cross-linking density
govern the mechanical and thermal properties of cured epoxy. Higher cross-linking leads to increasing glass transition temperature of the powder, improved solvent and chemical resistance, higher tensile strength, flexibility, and reduce elongation. So this higher cross-linking means more active hardener. So the glass transition temperature is a critical performance indicator is typical. So this depends on the type of hardener. If it is polyamide hardener, so TG will go down 50 to 80. If it is a cycloaliphatic amines, it is 90 to 150 degree. So this Noblac anhydride, this is for rebar and coil coating. So normally cycloaliphatic amines is used, but sometimes we cannot say which hardener is we are getting because no company will reveal the actual chemical composition of the hardener. So physical change during curing. The liquid, excellent substrate wetting, gelation, onset of cross-linking and loss of flow. After cross-linking, it will not flow. Before cross-linking starts, it will flow. As I told in earlier classes, जितने भी suppose 10 minute 10-15 minute हमारा जो curing cycle है उसमें से starting 3 to 4 minute it will flow. Then solid thermoset, network rigidity and final properties developed. The final curing and glass transition temperature can be determined by differential scanning calorimetry. This is a common used monitor. This is computer connected device which gives the computerized graphical representation. The key parameters influence curing. The stoichiometric ratio of resin to hardener. नहीं ये नहीं तो नहीं आएगा. This is for liquid. Stoichiometric ratio means whatever your supplier told, maybe 7.5 pHr or 8 pHr. These are the normal uses. 8 pHr of free epoxy resin. जितना भी हार्डनर कैलकुलेशन है वो फ्री इपॉक्सी कंटेंट पर ही कैलकुलेट होगी. देन क्यूरिंग टेम्परेचर एंड टाइम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. अगर आप लोग कुछ मैकेनिकल पुअर हो रहा है तो उसमें कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं. एक्सीलरेटर, कैटलिस्ट और एक्सीलरेटर. Then moisture and impurities. अगर impurities are there, so they will also react with the resin or hardener. तो जो भी हमारे hardener हैं उनके type. The primary classes of curing agent dominate industrial use. Amine, primary, secondary, and tertiary amines. Then anhydrides, cyclic, and aliphatic. So amine curing agent are the most widely used in industrial epoxy system due to their versatile performance. They contain active hydrogen atoms that react with the epoxide group in reaction. ये इसका primary amine and secondary amine.
इनका रिएक्शन है. But when we produce the powder coating, this electron, pi bond, sigma bond, these are of no use. Only हमारा जो हार्डनर इपॉक्सी का पीएचआर है उसको आप कंट्रोल करिए और उसके बाद प्रॉपर्टीज के देखिए. इफ प्रॉपर्टी इज ओके तो आवर हार्डनर इज आल्सो ओके. Then similarly, aliphatic amines. These are straight chain or branded amines offering rapid reactivity at ambient temperature. Because जितने भी ये केमिस्ट्री है ये R&D स्टेज पे जरूर इंपॉर्टेंट है, बट प्रोडक्शन स्टेज पे इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है. They deliver strong chemical resistance and good adhesion, but may suffer from amine blush when exposed to moisture during curing. Then cycloaliphatic, similarly aromatic amines. इसको आप लोग रन करके अगर जिसको पढ़ना है पढ़ सकते हैं. Anhydride curing agent, anhydride based curing mechanism. ये जो 6031B हमने बताया था, that is anhydride based mechanism. It is dimeltic anhydride. वो भी आगे आएगा रिएक्शन में. Then polyamide. This phenylcamine, this is for liquid epoxy. The phenylcamine is curing agent for liquid epoxy and phenolic hardeners for rebar and coil coating. Because this phenylcamine is in liquid form, it is not used in powder coating. कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ देखिए दी हुई है. एरोमेटिक, एनाइड्राइड. अभी हमारे पास एक कंपनी का कुछ पीपीटी है, स्लाइड्स, वो हम आपको दिखाते हैं. This is visible to you? भूषण जी, ये दिख रहा है आपको? हाँ, ये ओपन. ओके. हाँ, दिख रहा है. अभी ओपन नहीं हुआ है ना. हो गया, ओपन हो गया. ये स्लाइड दिख रही है, एन इंट्रोडक्शन? नहीं 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 आ रहा. सर नहीं दिख रहा है सर. हाँ वही, इसीलिए. अब दिख रहा है? हाँ, अभी ठीक है. ओके. यस, इट्स ओके. So this is a company from China. So normal classification of gloss: high gloss, semi glossy, matte, dead matte. ये तो सभी लोग जानते हैं. एंड इंडोर यूसेस के लिए नॉर्मली 68, जैसा हमने बताया आपको. हाइब्रिड के लिए 68 चलेगा, बट आउटडोर के लिए अलग अलग प्रोडक्ट हैं. इस कंपनी के प्रोडक्ट इस तरह से हैं. अदरवाइज ये एक्रिलिक पॉलीमर्स रहता है with TGIC and pure polyester resin it is used. ये देखिए बेसिक फॉर्मूला इन्होंने दिखाया हुआ है. जो RC68 है इस वेस्टोगन B68 एवोनिक, नाउ एवोनिक इज सेलिंग, इसके इक्विवेलेंट है. और ये इक्विवेलेंट दिखाया हुआ है. अगर कोई यूज करता है आइसोक्रिल या सेंथेक्रिलिक, ये सब एक्रिलिक रेजिन है, इनके साथ प्योर पॉलिस्टर में. इपॉक्सी, हार्डनर, हाइब्रिड, TGIC, HAA, ये सब के लिए बेसिक इनका डोज क्या रहेगा वो दिखाया हुआ है इन्होंने. मैटिंग एजेंट एडवांटेज: कन्वेंशनल मैटिंग हार्डनर, मैक्सिमम आपको ये 68 वाले ही यूज होते हैं. ये देखिए यहाँ पर ये दो तरह के हार्डनर आते हैं.
मतलब इनके प्रोसेसिंग दो तरह से होता है। एक पीएम है, दिस पॉलीमेथैक्रेलेट एंड पॉलीइमिडाजोल। ये पॉलीइमिडाजोल B31, जिसको हम लोग कई बार एक्सीलरेटर की भी तरह यूज करते हैं, वो मटेरियल है, ये 68 बन जाता है। और दूसरे में रॉ मटेरियल एक चेंज है, PMDA, पायरोमेलिटिक डाई एनहाइड्राइड। जो नॉर्मल जितने भी 68 वाले आ रहे हैं वो इस केमिस्ट्री से बनते हैं, और जो 6031B हमने बताया था वो इस केमिस्ट्री से है। बट आजकल चाइनीज कुछ लोग कर रहे हैं, ये प्लस ये दोनों को एक रेशियो में मिक्स कर देते हैं, तो उससे भी काफी रिजल्ट आ जाता है। दिस इज स्टार्टिंग फॉर्मुलेशन। देखिए इपॉक्सी रेजिन 700 से 850, पॉलिस्टर रेजिन ये 7030 वाला आ गया, देन मैटिंग हार्डनर, फ्लो फिलर्स, ये ग्लॉस लेवल है। बट दिस इज वेरी बेसिक, आप लोग अपने फॉर्मूले को छेड़िएगा नहीं अगर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। दिस इज डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट हार्डनर फ्रॉम दिस कंपनी। और भी लोगों के होते हैं, थोड़े इकोनॉमिकल ग्रेड वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर, विथ टेम्परेचर एंड टाइमिंग द ग्लॉस विल चेंज। 15 मिनट 180 66 ग्लॉस है, 15 मिनट 196 है, बट 15 200 5.7 हो गया। बट समटाइम it gives at 200 degrees centigrade slightly yellow stone, more yellow. So it is recommended 10 minute 180 degrees centigrade, or 10 minute 190 degrees centigrade, or maximum 180 15 minute. ये बेसिक फॉर्मूले हैं इनके। ये देखिए इन्होंने पैनल दिखाया हुआ है, दिस इज 190 15 minute and then 200 15 minute. So this is more yellow, is the same formula, it gives more yellow. आउटडोर के लिए एक्रिलिक रेजिन बेस्ड मैटिंग एजेंट, दिस इज, मतलब इसको अलग से जो फॉर्मूला है TGIC एंड पॉलिस्टर, वो तो 93.7 रहेगा, बट इसको एक्स्ट्रा डालते हैं जैसे जैसे ग्लॉस चाहिए होता है। 5 डिग्री सपोज चाहिए, सॉरी 30 to 40 डिग्री चाहिए होगा तो हम 5% यूज करेंगे, बट बिलो 10 अगर चाहिए तो हमको 10% तक जाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा कॉस्टली प्रोडक्ट बनता है ये। ये इन्होंने टेम्परेचर के साथ में इसके ग्लॉस वैल्यू को चेंज किया हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट जो इनके प्रोडक्ट हैं वो इन्होंने बताए हुए हैं। इसको थोड़ा हम फास्ट चला देते हैं। ये हमारे कुछ पुराने नोट्स हैं, ये आपको शायद थोड़ा फायदा करेंगे। ये बहुत पुराने नोट्स है मेरे 1990 के, उसको हमने डिजिटल फॉर्म में रखा हुआ है। वेरी नाइस। दिस वाज एट द स्टार्टिंग ऑफ माय करियर। तो ये यूनिट्स हैं, देखिए 1 इंच को मिल में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, कितने से किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज माइक्रोन, मिली माइक्रोन्स, इस टाइप से सर है।
0.5 मिल, यानी 1 मिल इज इक्वल टू 25 माइक्रोन. So for 0.5 means 20 to 30 माइक्रोन प्राइमर के लिए यूज होता है. देन 1 to 2 मिल मीन्स 25, इसको थोड़ा सा ज्यादा आजकल चल रहा है, यानी अराउंड 40 to 45 50 माइक्रोन कोटिंग के लिए. देन आर्किटेक्चरल कोटिंग जो रीवार या एल्युमिनियम एक्सट्रूजन के ऊपर कोटिंग करते हैं, दिस इज 2 to 3 मिल, यानी 50 to 75 माइक्रोन, तो ऑलमोस्ट 100 माइक्रोन हो जाता है. कुछ फॉर्मुलेशन है, ये आपके लिए भी काम आ सकते हैं, बट अभी प्रोडक्ट तो चेंज हो गया है, बिकॉज दिस वाज वेरी स्टार्टिंग क्रिल कोट. दिस नाउ दिस प्रोडक्ट नेम नंबर चेंज हो गए हैं, बट दीज आर फ्रॉम एलनेक्स. दिस इज प्योर पॉलिस्टर क्लियर कोटिंग, बट मोडा फ्लो आजकल तो जनरली मिलता नहीं है या इसकी कॉस्टिंग ज्यादा है, तो इसलिए बेटर है अगर आप प्योर पॉलिस्टर के रेजिन मास्टर बैच हो, फ्लो के लिए साथ मास्टर बैच हो, शायद उनका PT910 कुछ ऐसा प्रोडक्ट है एलनेक्स में, वो आप ले सकते हैं. देन इसी तरह पॉलीयूरेथेन, ये भी रेजिन चेंज होंगे. B1530, दिस इज एडक्ट, दिस इज आइसोसाइनेट एडक्ट. ओके, ये बेसिक फॉर्मूले हैं, खैर फॉर्मूले को तो जरूरत नहीं है इतना. ये देखिए, ये थोड़ा सा the polyester and polyurethane coating are based on saturated polyester having hydroxyl value 32. डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, जैसे जैसे हाइड्रोक्सिल वैल्यू होगी, अपना रिक्वायरमेंट रहता है 50 to 60 हाइड्रोक्सिल वैल्यू. एंड ब्लॉक्ड आइसोसाइनेट एज ए क्रॉस लिंकिंग एजेंट. सो इसमें ये तो वैसे हमने बीच में आप लोगों को बताया था, एलिफेटिक डाई आइसोसाइनेट confer light stability and caprolactam doesn't cause yellowing and they diffuse with. So caprolactam की जो डी ब्लॉकिंग है, that is 180 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड. सो उस टाइम पर रिएक्शन होगा, उसके पहले रिएक्शन नहीं होगा. सो फॉर प्रॉपर रिएक्शन एटलीस्ट ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड, ओवन टेम्परेचर नहीं, मेटल टेम्परेचर होता है हमेशा. ये जो हम लोग ओवन टेम्परेचर बोलते हैं, मेटल टेम्परेचर होना चाहिए. मींस ओवन टेम्परेचर 5 to 10 डिग्री और ज्यादा रखना पड़ेगा. ये B1530 ब्लॉक्ड आइसोसाइनेट अभी भी आ रहा है, ये IMCD के पास में है शायद ये प्रोडक्ट. देन ये तो बेसिक फॉर्मूले हैं. हम आपको क्यूरिंग एजेंट के बारे में और दिखाना चाह रहे थे. आ जाइए, रेनविन 325, ये एंड यूवी लाइट स्टेबलाइजर एंड यूवी स्टेबलाइजर है. तो इस टाइप के और प्रोडक्ट है मार्केट में इस टाइम आ रहे हैं, वो आपको आउटडोर जो यूवी एंड पॉलीयूरेथेन है उसमें जरूर डालना चाहिए. ये स्क्रीन दिख रही है आपको? यस. ओके, यस, ये स्क्रीन हम जरूर दिखाना चाह रहे थे आप लोग को.
ये हालांकि अभी यूज नहीं करते हैं लोग। ये देखिए हार्डनर्स टाइप है, बाइगोनाइड, डाइसी, इमिडाजोल, ये इनका केमिकल स्ट्रक्चर है। और हार्डनर, ये प्रोडक्ट आता था सीबा गाइगी का, HT2844। दिस इज प्योर हार्डनर फॉर प्योर इपॉक्सी ग्लॉसी फिनिश। अभी भी आते हैं, जो हमने कंपनी भी आपको राइट कैम दिखाई थी, उनका RC2844 आता है इस नाम से। दैट इज, अगर आपको प्योर इपॉक्सी में ग्लॉसी फिनिश बनाना है तो ये हार्डनर लेना पड़ेगा। देन HT2855 डाइसी, दिस इज स्लो रिएक्टिव, इससे भी ग्लॉसी फिनिश बन जाती है, बट आपको उसके लिए एक्सीलरेटेड डाइसी लेना पड़ेगा। ये आप कर सकते हैं डाइसी के साथ एक्सीलरेटेड डाल लीजिए, तो इससे भी आपका ग्लॉसी फिनिश बन जाएगा। इसका PHR अराउंड 95.5 रहता है डाइसी का। या अगर आप TDS देखेंगे, वो रिकमेंड डोज बता देंगे कंपनी, जिसका भी डाइसी आप ले रहे हैं। देन इमिडाजोल, दिस इज B31, ये ट्रेड नेम है। इसको B31 को हम एज ए एक्सीलरेटर भी यूज कर सकते हैं, बट B31 से एक्सीलरेट मतलब करके अगर हमने पाउडर बनाया, उसके स्टोरेज स्टेबिलिटी पुअर मिलेगा आपको। 3 से 4 महीने में उसके फिनिश वगैरह खराब हो जाएगा। सेल्फ लाइफ कम है B31 यूज करने से। ये कुछ फॉर्मूले हैं रीबार कोटिंग के, जो कि उस टाइम, क्योंकि हार्ड केसल में हमारा ऑक्सीप्लास्ट के साथ में, ऑक्सीप्लास्ट बेल्जियम के साथ में कोलेबोरेशन था, तो उनके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। ये सिम्स, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में कुछ सिम्स लगते हैं, या कंप्यूटर के ऊपर हीट हीट सिंक्स जो होती हैं, उसके लिए पाउडर बनाते हैं। तो ये देखिए इनके बेसिक फॉर्मूले क्लियर कोटिंग का। दिस एक्सीलरेटर 3126, आजकल चाइना से आ रहा है 316। कुछ कंपनियों का 316 है, और कुछ कंपनियों के अपने अपने प्रोडक्ट हैं। चाइना में तो कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट आप अपने नाम से मंगवा लीजिए। चाइना चालू होने से ये प्रॉब्लम है, पता ही नहीं चलता किस कंपनी का प्रोडक्ट है। ये देखिए ऑक्सीप्लास्ट बेल्जियम के कुछ फॉर्मूले हैं। दिस इज फॉर रीबार कोटिंग। हार्ड केसल के फॉर्मूले हैं। हार्डनर, ये बहुत फास्ट रिएक्टिव होता है सर। इसका देखिए जेल टाइम 28 सेकेंड। नॉर्मली जो हम लोग भी पाउडर कोटिंग बनाते हैं हाइब्रिड या PP, उसका 120 सेकेंड्स होता है जेल टाइम, और इसका जेल टाइम 28 सेकेंड। यानी रीबार एंड कॉइल कोटिंग के लिए, आर्किटेक्चरल फिनिशेस के लिए बेसिकली है ये, इतना फास्ट क्योरिंग। और इनका क्योरिंग देखिए 180 डिग्री पर 5 मिनट में हो जाता है। इवन 155 पर 5 मिनट में हो जाएगा, बिकॉज बहुत हाईली रिएक्टिव हार्डनर इसमें पड़ते हैं। ये हार्डनर मोमेंटिव के हैं, पहले तो शेल कंपनी के होते थे, बट शेल इज टेकन ओवर बाय मोमेंटिव, सो अभी मोमेंटिव के प्रोडक्ट हैं। चाइना से भी काफी प्रोडक्ट आते हैं। ये हम आपको, अच्छा ये तो
फ्लोरेसेंट एंड फास्फोरेसेंट मटेरियल हैं, जो डाइज वगैरह हैं फ्लोरेसेंट, उनके बारे में थोड़ा सा बाई चांस बीच में आ गया इसलिए आपको दिखा दिया। बस आज की क्लास तो अभी 2 मिनट और बचे हैं। ये थोड़ी सी केमिस्ट्री है, प्राइमरी सर बॉन्ड, फ्री एपॉक्सी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे वो जरा बताइए। इपॉक्सी इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, फ्री इपॉक्सी। फ्री एपॉक्सी वैल्यू कैसे कैलकुलेट, हाँ सर वो क्या करेंगे, जैसे हमारा पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर को 70-30 के रेशियो में है, तो जो भी पॉलिस्टर की वैल्यू है इंटू 30 डिवाइड बाई 70, यानी जो सर इसकी जरा जो प्लीज वैल्यू लिखिए तो आएगी। समझ में आए। अच्छा चलिए, तो अगर आज टाइम कम है तो इस हाँ पॉइंट को बिल्कुल, अगली इसीलिए क्लास। हम कोई बात नहीं, सेकंड क्लास में ले लेंगे। जो पॉलिस्टर की हाँ वैल्यू है इसको इंटू करिए 30। वैल्यू मतलब एसिड वैल्यू। नहीं नहीं, उसकी क्वांटिटी अच्छा क्वांटिटी। जी, और डिवाइड करिए 70, जो भी इसमें वैल्यू आएगी। इसके बाद आप क्या करिए, जो इपॉक्सी की वैल्यू है, क्वांटिटी है, उसमें से ये सपोज ये ए वैल्यू आई, तो आप इपॉक्सी की क्वांटिटी में से ये वैल्यू माइनस कर दीजिए, तो फ्री इपॉक्सी आ जाएगा। ये तो 70-30 के लिए हुआ ना सर। बिल्कुल 70-30 के लिए। अगर 50-50 है वो तो है भी 50 सर 50 है तो सेम, 50-50 के लिए यहाँ पर